how to standardize your solution. आपने किया हुआ है practical how to standardize your solutions like NaOH, HCl. Do you know how to standardize these solutions which are secondary standard? नहीं पता है? No, sir. Okay, so first we'll see how we can calibrate our volumetric glassware, like the volumetric flask. Volumetric flask you have seen in your undergraduate labs. Yes, sir. These are like the you have different capacities of volumetric flask like 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml. So these are basically used to prepare the solution in which you can store the different solutions, and there is a mark over these volumetric flask which should need to be calibrated, क्योंकि जब ये फ्लास्क बन के आती है ना वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, तो उसमें पीछे से ही मार्क लगा होता है, बट वी डू नॉट नो वेदर इट इज एक्यूरेट और एक्यूरेट है कि एक्यूरेट नहीं है, उसके लिए हमें उसको कैलिब्रेट करना पड़ता है. सो फर्स्ट वील सी हाउ वी कैन कैलिब्रेट our volumetric flask. Okay, so for doing the calibration, first you need to clean. So जब भी आप लैब में पहले जाते हो, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना अपरेटस अच्छे से वॉश करना है. You need to be thoroughly cleaning your this glasswares using chromic acid. अगर तो उसमें जो गंदगी है, जो impurity है, that is very large and that is not getting washed by the water, so you should choose chromic acid. Chromic acid is the mixture of sulfuric acid and this potassium dichromate. तो उसको यूज करना, some use nitric acid, but यहाँ पे हमारे आप इतनी गंदी तो नहीं होती हैं फ्लास्क, so simply you can wash it with water and the liquid soap that is available in the lab. So liquid soap से आप उसको वॉश कर सकते हो, जो आपके पास जो भी ब्रश है उससे आप पहले, the first thing you need to do is to clean your this volumetric flasks. So clean करने के बाद you need to dry it either by using the hot air oven or whatever things you have. आपके पास कपड़ा है या आपके पास फिल्टर पेपर है, तो उससे आप क्या करोगे, अपनी वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क को अच्छे से क्लीन करोगे एंड उसको ड्राई करोगे. Okay, so when you have dried it, then what you have to do, you need to find the weight of the empty volumetric flask. तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जो क्लीन करने के बाद आपकी ड्राई वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है उसको एम्प्टी को आप वेट करोगे. So suppose the weight of the empty volumetric flask comes W1 gram. तो आपके पास एक वेट आ गया ना, that is W1 ग्राम. ठीक है, तो उसके बाद आपने क्या करना है, जो उसमें मार्क लगा हुआ है वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में, तो मार्क तक आपने उसमें डिस्टिल्ड वाटर भरना है. जो उसमें ऑलरेडी मार्क लगा हुआ है, तो डिस्टिल्ड वाटर इज दिस अवेलेबल इन योर लेबोरेटरी से आप ले सकते हो, and you fill this volumetric flask so that its lower meniscus जो उसमें मार्क लगा हुआ है, जो आपके वाटर का लोअर मेनिस्कस उस मार्क तक टच होना चाहिए, तो आपको वहां तक उसको फिल करना है. अगेन आप क्या करो, फिल्टर पेपर ले लो, जो भी एक्स्ट्रा वाटर फ्लास्क के बाहर लगा हुआ है या उसके ऊपर लिड पे लगा हुआ है, कहीं लगा हुआ है, तो आप उसको अगेन यू विल यूज द फिल्टर पेपर टू वाइप आउट द एक्स्ट्रा वाटर that is on this volumetric flask, and then again you will wait. तो क्या होगा, अब आपके पास कौन सा वेट आ गया, नो यू हैव द वेट ऑफ द volumetric flask with water. So suppose it is a 100 ml volumetric flask, तो आपके पास एक empty volumetric flask का वेट आ गया, that is W1 gram, and now you have the weight of W2, that is the volumetric flask, plus आप assume करो plus 100 ml of distilled water. You are supposing that it is giving accurately 100%. तो जो मार्क तक पानी आपका है उसका और empty का वेट आ गया. So why subtracting W1 from the W2, what you will get? W2 को अगर W1 से आप
So weight of water. हाँ, वेट ऑफ द वाटर, जो मार्क तक वाटर था उसका आपने आपको वेट पता चल जाएगा कि उसमें जो मार्क तक कितना पानी भरा है वो आपको वहां से पता चल जाएगा, ठीक है ना। नो, व्हाट विल डू, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी? Mass upon volume. Mass upon volume, right. I have written this formula that density is equal to mass by Mass upon volume. Now you have the mass. आपके पास मास है ना, आपके पास जो मार्क तक आपने डिस्टिल वाटर लिया था, यू हैव दिस वैल्यू मास, Yes, sir. है ना। और दूसरा आपके पास द सेकंड थिंग यू नीड टू डू व्हेन यू एंटर योर फिजिकल लैब इज टू मेजर द रूम टेम्परेचर। सिंपली टेक योर थर्मामीटर एंड डिप इट इन ए वीकर। वीकर में पानी ले लो, उसमें अपना अपना थर्मामीटर डिप करो, तो वहां से आपको क्या पता चल जाएगा, रूम टेम्परेचर। So room temperature, suppose it is 20 degrees Celsius. So by using this table, you can see what is the volume of water at 20 degrees Celsius. What is the volume? It is 0.9972. 72. It is 0.9972. So अगर आपको रूम टेम्परेचर पता है तो वहां से आप वाटर की डेंसिटी देख सकते हो, that it is what value of density is at a particular temperature, because density you know that it changes with temperature. Why it changes? Because your volume, it is inversely proportional to the volume. Your volume changes with temperature, that's why your density changes with the temperature. तो आपके पास density की भी value आ गई water की, by using the literature, by seeing the table, you have the mass. Now you can calculate that how much volume of water is there up to the mark. तो mark तक उसमें कितना पानी है वो आप इस फॉर्मूला से निकाल लोगे। सो इफ इट इज एग्जैक्टली 100 ml, देन यू नीड नॉट टू मार्क अनदर, यू मार्क ऑन द वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। तो अगर वो चेंज हो रहा है तो आपको क्या करना है, उसके मार्क को चेंज करना है। सपोज दिस वॉल्यूम कम्स आउट टू बी 99 ml, देन व्हाट विल डू, अगर मार्क तक आपका जो पानी है वो 99 ml निकला इस फॉर्मूला से, तो आप क्या करोगे, क्या करोगे? So 1 ml water और डाल देंगे। हाँ, you simply add 1 ml more water and see the level of water. तो वहां पे जहां पे लोअर मेनिस्कस आपका वाटर का होगा वहां पे आप you can install the new mark, and if it is coming more than 100 ml, suppose it is coming 102 ml, so what you will do, you remove 2 ml water from the flask and again see where your lower meniscus touch, जो यहाँ पे आपका lower meniscus उस वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में टच करेगा, उसकी ऐसे ऊपर नेक होती है एंड एट द बॉटम देयर इज अ राउंड शेप दिस वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। 1 minute। ओके, समझ आ गया आपको कैसे कैलिब्रेट करोगे वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क को? यस सर। हाँ, अब मुझे बताओ अपने थर्मामीटर को कैसे कैलिब्रेट करोगे, कोई बता सकता है कि थर्मामीटर को कैसे कैलिब्रेट करते हो? Boiling point of water. हाँ राइट, कौन बोला, व्हाट इज योर नेम? सही, मानसी शर्मा। हाँ,
तो सिंपली थर्मामीटर को कैलिब्रेट करने के लिए आपको क्या करना है, यू सिंपली, आपके पास यहाँ पे वाटर बाथ अवेलेबल हैं, तो सिंपली जब वाटर बॉयल करेगा तो आपने अपने थर्मामीटर को उसमें डिप करना है। एंड यू नो दैट व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, इट इज 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉयल करता है, तो वहां से आप चेक कर लोगे कि whether the reading in the thermometer is 100 डिग्री or it is below or it is higher. So हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप टेम्परेचर नोट करो तो अपने थर्मामीटर से ही करो, बिकॉज यू डोंट नो व्हाट दैट अदर थर्मामीटर इज कैलिब्रेटेड और नॉट। तो जब भी आपको नोट करना है अपने थर्मामीटर से करना है, दैट शुड बी प्रॉपरली कैलिब्रेटेड। सो सपोज the boiling water of water is showing on your thermometer 98 डिग्री सेल्सियस शो कर रहा है, तो उस केस में आप क्या करोगे, तो आप वहां से कंफर्म करोगे कि मेरा जो थर्मामीटर है वो 2 डिग्री कम बताता है एक्चुअल वैल्यू से। तो जब भी आपका फ्यूचर में टेम्परेचर आएगा आप उसमें 2 डिग्री ऐड करोगे, है ना। एंड सपोज योर थर्मामीटर इज शोइंग 105 डिग्री सेल्सियस, सो दैट मींस योर थर्मामीटर इज शोइंग 5 डिग्री XX to the ideal temperature that it should be shown. So आप उस केस में, हर केस में अपना 5 डिग्री जो है वो माइनस करोगे। जब भी आप फ्यूचर में प्रैक्टिकल की रीडिंग लोगे थर्मामीटर से, तो आप 5 डिग्री उसमें कम लिखोगे। ठीक है ना, समझ आ गया। सर आइस में भी कर सकते हैं कैलिब्रेट, क्रश्ड आइस में? क्रश्ड आइस में भी कर सकते हो, बट उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है कि कभी आपका प्रॉपरली इंसर्ट नहीं होता, बिकॉज आइस कभी कभी हमारे यहाँ अवेलेबल होती है, कभी नहीं होती, एंड वहां से भी दिक्कत हो सकती है। अगर आपके पास सफिशिएंट अवेलेबल है, यू कैन डू दैट आल्सो, बिकॉज यू नो दैट योर वाटर फ्रीज एट 0 डिग्री सेल्सियस, एंड वहां से भी कर सकते हो। बट वहां पे दिक्कत यही है कि आपका जो थर्मामीटर है वो 0 डिग्री तो बताएगा नहीं। आपके जो लैब में थर्मामीटर अवेलेबल है ना, वो 0 डिग्री से नहीं बताते हैं, वो शायद थोड़ा ऊपर से ही बताते हैं 10 to 15। अगर 0 पे बताएंगे तो उतना इजी नहीं होगा आपको वहां से देखना ना। सो इट इज बेटर टू कैलिब्रेट देम एट द बॉइलिंग टेम्परेचर देन एट द फ्रीजिंग टेम्परेचर। ओके, थैंक यू सर। next is the calibration of pipettes. So by using the same analogy that we perform for the volumetric flasks, you can calibrate your pipettes. So simply आपके पास अलग अलग वॉल्यूम्स के पिपेट होते हैं, 5 ml, 10 ml, 20 ml। तो आप क्या करोगे, तो आप you again need to clean your pipette and उसको अच्छे से आप क्लीन करोगे, अच्छे से उसको वॉश करोगे और then you will dry it। ठीक है, और साथ बाय साथ आपने क्या करना है, एक छोटी सी फ्लास्क लेनी है, सपोज 250 ml कॉनिकल फ्लास्क, एंड अगेन यू कैन क्लीन एंड दिस ड्राई दिस स्मॉल फ्लास्क। देन आपने क्या करना है कि जो पिपेट के मार्क है वहां तक आप पिपेट आउट करोगे वाटर को। If it is a 10 ml pipette, then you suck out this 10 ml of distilled water and then transfer that 10 ml into the conical flask। एंड दैट कॉनिकल फ्लास्क जो आपने क्लीन की है उसका आपने एम्प्टी का भी वेट लेना है, और जब आपने 10 ml पिपेट का उसमें ऐड कर दिया उसका भी वेट लेना है। एंड फ्रॉम दैट यू कैन कैलकुलेट दैट व्हाट अमाउंट ऑफ वेट इज देयर टू द वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट वाज टेकन इन द पिपेट। तो वहां से आप पिपेट में कितना वाटर था वहां से आप उसका वेट ले सकते हो। एंड अगेन बाय यूजिंग द सेम डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम फार्मूला, you can see whether your pipette is properly calibrated or not, and if it is if it gives the same exact value, then you not to mark any point on the pipette। otherwise अगर ज्यादा या कम देता है वो accordingly आप उसमें मार्क अपना एडजस्ट करोगे। so इस तरह से आप अपने कोई भी glassware है that is giving you the volume of the different solutions, you can calibrate by using the same method। So next thing that is very, very important in physical chemistry is to preparation of standard solution. Standard solution. Can anybody know what is the standard solution? Standard solution होता क्या है? जिसकी concentration known हो। Yes, yes. So standard solution is a solution whose concentration is known to you. That is, a known concentration of solute is
dissolved in a known amount of solvent to get the known volume of the solution. So a solution whose concentration is exactly known, that is the standard solution. ठीक है, मगर दिक्कत ये है कि the method of preparing standard solution is limited only to the primary standard. अब हमारे पास दो तरह के स्टैंडर्ड सब्सटेंस होते हैं, प्राइमरी स्टैंडर्ड और सेकेंडरी स्टैंडर्ड. प्राइमरी स्टैंडर्ड क्या होते हैं? प्राइमरी स्टैंडर्ड वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनकी कंसंट्रेशन टाइम के साथ चेंज होती है और जिनकी कंपोजिशन आपको एग्जैक्टली पता है, उनको बोलते हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड. क्या हो गए प्राइमरी स्टैंडर्ड? जिनकी टाइम के साथ कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती, और दूसरा जिसकी कंपोजिशन आपको एग्जैक्टली पता है, लाइक ऑक्सैलिक एसिड, like ferrous ammonium sulfate, copper sulfate, silver nitrate. So all these substances, their concentration do not change with temperature. But कुछ substances हैं जिनकी concentration temperature के साथ change होती है. Sorry, temperature बोल रहा हूँ मैं, time के साथ. इनकी concentration time के साथ change होती है, और दूसरा जिनकी composition आपको exactly पता नहीं है. तो composition किनकी time के साथ change होती है? जैसे जो hygroscopic substances है, like NaOH, like sodium thiosulfate. So all these substances are highly hygroscopic. Hygroscopic का क्या मतलब है? That they absorb the water from the moisture around the environment. तो अगर आपने देखा होगा कि अगर NaOH pellets जो है आप ऐसे ही अपनी लैब में रख दोगे तो वो थोड़े टाइम के बाद गीली हो जाती है. They absorb the moisture that is present around them. ठीक है, तो उनकी जो कंपोजिशन है वो टाइम के साथ चेंज हो रही है ना, by absorbing the environment's moisture. So that's why they are called the secondary standard. तो दूसरा क्या है? जिनकी कंपोजिशन हमें एग्जैक्टली पता नहीं है, जैसे HCl है, सल्फ्यूरिक एसिड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है. सो इनकी कंसंट्रेशन, इनकी कंपोजिशन हमें एग्जैक्टली पता नहीं होती है. इट इज गिवन इन द लिटरेचर दैट they have this composition, but it is not exactly known. It is not known that whether 11.6 normal HCl is present in that bottle or not. So these substances whose composition is not precisely known, उनका हम known amount of solute को known amount of solvent में dissolve करके solution नहीं बना सकते. नॉन अमाउंट ऑफ सोल्यूट को नॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में आप तभी डिसॉल्व करोगे जब आपके सब्सटेंसेस जो है प्राइमरी स्टैंडर्ड है, लाइक ऑक्सैलिक एसिड, फेरस अमोनियम. तो अगर वो प्राइमरी स्टैंडर्ड नहीं है, देन आप उनका सीधा वेट लेके सीधा उनको डिसॉल्व करके उनका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन नहीं बना सकते. सपोज कर लो कि फार्मूला से NaOH का वेट निकलता है 1 ग्राम, तो अगर आपने 1 ग्राम लेके अपना स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बना दिया, बट उस 1 ग्राम में वाटर भी तो प्रेजेंट है, द वाटर दैट इज अब्सॉर्ब्ड बाय द NaOH, सो उसमें वो भी तो प्रेजेंट है. सो अल्टीमेटली जो अगर आपने 1 ग्राम को लेके अपना सॉल्यूशन बनाया, तो हो सकता है उसकी एग्जैक्ट कंसंट्रेशन 0.1 नॉर्मल नहीं होके 0.1 नॉर्मल से कम होगी, क्योंकि कुछ अमाउंट का वाटर उसमें ऑलरेडी प्रेजेंट है. तो सपोज दूसरे केस में सपोज कर लो, यू हैव सपोज दैट इट इज 11.6 नॉर्मल, तो आपने उसको लेकर सॉल्यूशन बना दिया, तो बाद में जब आपने पता किया कि उसकी एग्जैक्ट कंसंट्रेशन क्या है, इट मे नॉट बी 11.6, वो 9 नॉर्मल निकल गई, तो फिर बाद में आपके रिजल्ट्स में एरर आएगा. और इट इज बेटर टू सो दैट दीज, जब भी आपने सेकेंडरी स्टैंडर्ड के सॉल्यूशंस बनाने हैं, सो फर्स्ट यू नीड टू स्टैंडर्डाइज दो सॉल्यूशन. First you need to standardize the solution. So standardize करने के लिए आपको there is a method that is common in all these substances. तो जब भी आपको किसी का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाना है ना, so first you need to prepare a stock solution. First you need to prepare a stock solution of higher concentration than required by approximate weighing. Then required by, अभी आप इसको ऐसे याद रखो, फिर जब हम NaOH की अलग से स्टैंडर्डाइजेशन पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे बनाना है. अभी मैं जनरल आपको बता देता हूं
कि जब आपने स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाना है सेकेंडरी स्टैंडर्ड का, पहले आप क्या करोगे, पहले आप एक स्टॉक सॉल्यूशन बनाओगे बाय अप्रोक्सीमेट वेइंग, बाय प्रिपेयरिंग ए सॉल्यूशन दैट इज ऑफ हायर कंसंट्रेशन। सपोज आपको कैलकुलेशन से 1 ग्राम आता है, तो आप क्या करोगे, उससे हायर लोगे, उससे 1.5 या 2 टाइम्स लोगे। अगर आपका 1 ग्राम आता है, सो सॉरी, you take 1.5 ग्राम or you take 1.6 ग्राम, 1.7 ग्राम, 2 ग्राम ले लो, बट कभी भी 1 ग्राम को 1 ग्राम नहीं लेना है। You need to take 1.5 or 2 times that is obtained by approximate weight। पहले आप स्टॉक सॉल्यूशन बनाओ एंड देन उस स्टॉक सॉल्यूशन को आप स्टैंडर्डाइज करो बाय टाइट्रेशन मेथड, बाय टाइट्रेशन मेथड। टाइट्रेशन मेथड से आप देखोगे कि जो आपने सॉल्यूशन बनाया है उसकी कंसंट्रेशन एग्जैक्ट है क्या। उसके बाद बाय नोइंग द एग्जैक्ट कंसंट्रेशन एंड वॉल्यूम प्रेजेंट इन दैट स्टॉक सॉल्यूशन, तो आप डिल्यूशन मेथड से उसको डिल्यूट करोगे एंड देन यू प्रिपेयर द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, समझ आया ये? So first see the how to prepare a standard solution of sodium hydroxide, that is the caustic soda। Suppose इसकी आपने बनानी है 0.1 नॉर्मल, यहाँ पे मोलर लिखा है, मैं नॉर्मल बोलता हूँ। So you need to prepare 0.1 नॉर्मल of sodium hydroxide amounting to 250 ml। आपको 0.1 नॉर्मल सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाना है 250 ml में, ठीक है? तो उसको आप कैसे करोगे? सो अगेन दीज थिंग्स आर ऑलरेडी रिटन, मैं आपको बता दिया कि क्योंकि हाइग्रोस्कोपिक नेचर होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, सो इट इज ऑलवेज कंटेमिनेटेड विद वाटर। सो इट्स स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग नॉन अमाउंट ऑफ दिस NaOH इन नॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सो पहले आपको क्या करना है, एक हायर कंसंट्रेशन का स्टॉक सॉल्यूशन बनाना है। और ऑक्सैलिक एसिड एक सेकेंडरी स्टैंडर्ड है। हमेशा जब भी आप सेकेंडरी स्टैंडर्ड को स्टैंडर्डाइज करोगे, किसके साथ टाइट्रेट करके करोगे? प्राइमरी स्टैंडर्ड के साथ। किसके साथ करोगे? प्राइमरी स्टैंडर्ड के साथ, जिसका सॉल्यूशन ऑलरेडी स्टैंडर्डाइज है। सो सोडियम हाइड्रोक्साइड को किस प्राइमरी स्टैंडर्ड से स्टैंडर्डाइज करते हैं? ऑक्सैलिक एसिड। सो ऑक्सैलिक एसिड व्हिच इज द प्राइमरी स्टैंडर्ड इज यूज्ड फॉर दिस स्टैंडर्डाइजिंग the NaOH solution। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले you will use the normality or molality formula to calculate that how much volume, how much weight of solute or for NaOH is required to prepare a given volume or given amount of solute in given volume of solution। सो फॉर्मूला आपको कौन सा यूज करना है? दैट नॉर्मलिटी, जो आपको नॉर्मल सॉल्यूशन बनाना है ना, जैसे इस केस में हमें n/10 बनाना है, सो n/10 is equal to weight of solute। this weight of solute you need to calculate that how much weight of solute is required to prepare this much concentration in this much volume, divided by gram molecular weight। so because we are preparing normal solution, you need to take into account the gram equivalent weight। so in case of molarity you will use the molecular weight यूज करोगे। मोलैरिटी में मॉलिक्यूलर वेट यूज करोगे, नॉर्मलिटी में ग्राम इक्विवेलेंट वेट यूज करोगे, इनटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। सो आपके केस में मुझे NaOH कितना बनाना है? 0.1 in 250, 0.1 in 250। सो राइट साइड में मैं 0.1 दैट इज n/10, सो n/10 लिखूंगा। वेट मुझे कैलकुलेट करना है तो W ही लिखूंगा। एंड यू नो that what is the gram equivalent weight of NaOH? It is same as the molecular weight। It is same as the molecular weight because you know that the charge of Na plus NaOH negative is 1, so 40 इसका पूरा है, 40 divided by 1 is 40। so weight by 40 into 1000 into 250 में हमें बनाना है, तो कितना आएगा? 250। so यहाँ से 250 और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पे 4 आ जाएगा एंड 4 और 40 भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये 10 आ जाएगा एंड दिस 10 and this 10 will get cancelled। so ultimately weight of NaOH required to prepare
the solution of 250 ml of NaOH is 1 gram. So 1 gram वेट इसका चाहिए अगर वो प्राइमरी स्टैंडर्ड होता, बट वो प्राइमरी स्टैंडर्ड नहीं है, वो प्राइमरी स्टैंडर्ड नहीं है। तो मैंने क्या बोला आपको, जब प्राइमरी स्टैंडर्ड नहीं है तो कितना लेना है, उससे ज्यादा लेना है सर। ज़्यादा। you will take 1.5 to 2 gram of the compound that is calculated by approximate weight। तो आप इसको क्या करो, 1.5 ग्राम ले लो। इस केस में जनरली वेट ऑफ NaOH के केस में आप क्या कर सकते हो, 1 ग्राम की जगह आपने कितना लेना है, 1.5 ग्राम आपने वॉच ग्लास लेनी है, उसमें वेइंग बैलेंस पे वे करना है 1.5 ग्राम ऑफ NaOH। ठीक है, तो क्योंकि हम 250 ml में इसको बना रहे हैं, सो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क आपको कौन सी लेनी है, 250 ml वाली, जो ऑलरेडी कैलिब्रेटेड है, ये ऑलरेडी आपने कैलिब्रेट कर ली हुई है। सो व्हाट यू डू, आप क्या करोगे, एक बड़ी फनल ले लो, फनल में अपना वॉच ग्लास में जो भी आपका NaOH प्रेजेंट है उसमें ट्रांसफर करो फनल में, एंड देन ट्रांसफर दैट कंटेंट्स इनटू योर वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क and slowly add water into the funnel so that it get transferred into the volumetric flask। पहले थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से उसको NaOH को डिसॉल्व कर लो, फिर आपने क्या करना है, जो ऊपर मार्क आपने लगाया हुआ ना, वहां तक आपने पानी भर देना है, वहां तक आपने पानी भर देना है। अब जो आपके पास सॉल्यूशन अभी है, इसको कौन सा सॉल्यूशन बोलोगे, इज इट स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, stock solution? stock solution, this is the stock solution that you need to standardize। स्टैंडर्डाइज किसके साथ करेंगे, ऑक्सैलिक एसिड के साथ। तो जैसे आपने NaOH का बनाया वैसे ही आप क्या करोगे, ऑक्सैलिक एसिड का सॉल्यूशन बनाओगे। बट ऑक्सैलिक एसिड आपको पता है कि वो क्या है, प्राइमरी स्टैंडर्ड, तो उसको आपने क्या करना है, उसका सीधा जितना वेट आता है ना उतना लेना है। सपोज मैंने ऑक्सैलिक एसिड बनाया है N/10 in 100 ml, तो मैं फॉर्मूले से देखूंगा N/10 is equal to weight, no, molecular weight of oxalic acid is 126। First tell me that what is the formula of oxalic acid, COOH into 2 times water। yeah, this thing is important, into 2 times water भी है। उनको molecular weight में काउंट करते हो या नहीं, Yes। हाँ, उनको भी मॉलिक्यूलर वेट में काउंट करते हैं। जो 2 times वाटर ऑफ हाइड्रेशन है ना, उनको भी मॉलिक्यूलर वेट में काउंट करते हैं। सो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दिस कम्स आउट टू 126 एंड यू नो दैट द इक्विवेलेंट वेट इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग दिस बाय 2। सो कितना आ जाएगा, 63 आ जाएगा, बिकॉज इसमें 2 H पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट है ना, तो 63 आ जाएगा। सो आपको 100 ml बनाना है, सो 1000 डिवाइडेड बाय 100, सो इट कम्स आउट टू 0.63 ग्राम। सो आप 0.63 ग्राम अपनी वॉच ग्लास में वे करोगे, और and you now use the 100 ml volumetric flask। now you transfer the contents into this 100 ml volumetric flask, wash that watch glass with water keeping it up the funnel। so उसके बाद आप मिनिमम वाटर में उसको अच्छे से डिसॉल्व करोगे। ये आपको ध्यान रखना है कि वो अच्छे से डिसॉल्व हो गए नहीं है, उसको उसमें वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में ट्रांसफर किया और ऊपर से पानी डाल दिया और नीचे ऑक्सैलिक एसिड ऐसे ही पड़ा हुआ है। सो फर्स्ट यू नीड टू थॉरोली dissolve the content and then this raise the volume up to the mark। तो यहाँ पे आपने मार्क लगाया है, वहां पे आप उसको वॉल्यूम को डिल्यूट कर, ठीक है। yes, sir। और दूसरी बात आपने ये ध्यान में रखनी है कि जिसको भी आपने स्टैंडर्डाइज करना है ना, उसको कहाँ रखते हो, उसको ब्यूरेट में रखते हो या उसको पिपेट आउट करते हो। तो जो भी आपने स्टैंडर्डाइज करनी है ना चीज, उसको हमेशा ब्यूरेट में रखते हैं। उसको कहाँ रखते हैं, ब्यूरेट में। यहाँ पे आपको NaOH को स्टैंडर्डाइज करना है, तो NaOH शुड बी इन द ब्यूरेट। सो आप क्या करोगे, ब्यूरेट को भी अच्छे से क्लीन करोगे। 50 ml उसका वॉल्यूम होता है, तो आप उसको अच्छे से क्लीन करोगे। अच्छे से साफ करने के बाद, ड्राई करने के बाद उसको, वैसे अगर आपने वाटर से ही किया है तो ड्राई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें पानी डालना है बाद में। तो जस्ट हैंग इट विद द सपोर्ट ऑफ दिस स्टैंड।
स्टैंड से आप उसको सपोर्ट करो और उसको आप लगा दो अपनी बिरट को, एंड एड NaOH इन द स्टॉक सॉल्यूशन। जो आपने NaOH का बनाया ना, उसको आप क्या करोगे, बिरट में ट्रांसफर कर दोगे, बिरट में ट्रांसफर कर दो। ठीक है, तो अभी आपने जो पिपेट आउट करना है वो किसको करना है, ऑक्सैलिक एसिड को, और ऑक्सैलिक एसिड को किससे टाइट्रेट करना है, NaOH को, जो आपके बिरट में, आपके बिरट में। So tell me which indicator should be used here, because this is acid base titrations, oxalic acid is acid and NaOH is base. So कौन सा आप इंडिकेटर यूज करोगे, Phenolphthalein. फिनोक्सिलिन यूज करते हैं, जनरली विल यूज फिनोक्सिलिन। एंड यू नो दैट फिनोक्सिलिन जो है वो एसिड में कलर देता है या बेस में कलर देता है, एसिड मिलता है शायद। बेस। एक बताओ ना एग्जैक्टली। सो व्हाट शुड बी द एंड पॉइंट ऑफ दीज टाइट्रेशंस, एंड पॉइंट क्या होगा इसका, Appearance of pink color. अपीयरेंस ऑफ पिंक कलर, मींस बेस डालने से पिंक कलर आएगा, बेस डालने से पिंक कलर आएगा। तो जब आप ऑक्सैलिक एसिड, आपने क्या करना है, सपोज यू पिपेट आउट 10 ml ऑफ, आपने 10 ml ऑक्सैलिक एसिड पिपेट आउट करना है पिपेट से, और इसको एक कॉनिकल फ्लास्क में ट्रांसफर कर देना है। फिर उसमें आप क्या करोगे, 1-2 ड्रॉप किसके डालोगे, फिनोक्सिलिन, एंड देन यू टाइट्रेट slowly by adding small amounts of NaOH into that conical flask। तो जैसे इसमें ड्रॉप गिरेगा ना, पिंक कलर छोटा सा आएगा, तो आपको तब तक करते जाना है जब तक लाइट पिंक कलर उसमें रिटेन नहीं करता है, जब तक लाइट पिंक कलर उसमें रिटेन नहीं करता है। तो जब उसमें लाइट पिंक कलर रिटेन कर गया, तो यू नीड टू नोट डाउन द बिरट रीडिंग। आप क्या करोगे, बिरट से देखोगे कि कितना वॉल्यूम यूज हुआ है, उसको पिंक कलर लाने में, एंड पॉइंट में। So again you repeat the experiment by pipetting out 10 ml of oxalic acid and again titrating with NaOH। So again 3 टाइम आपको करना है, कितने टाइम करना है, 3 टाइम करना है, एंड देन concurrent reading। सपोज 2 बार आपका आ गया 8 ml, एक बार आ गया 8.1 ml। सो concurrent reading is जो रिपीट हो रही है ना रीडिंग, वो लेनी है। तो अगर थोड़ी सी तीनों में वेरिएशन आ रही है तो आप उनका मीन ले लो, आप उनका मीन ले लो। बट ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपको ये जो स्टैंडर्डाइजेशन है वो स्लोली करनी है और एक्यूरेटली करनी है। अगर आप उसमें ज्यादा ब्यूरेट का प्लग खोल दोगे तो क्या हो जाएगा, वो अगर ज्यादा डल जाएगा तो आपके रिजल्ट्स में भी प्रॉब्लम आ जाएगी। सो स्लोली एंड स्टेडली बाय कांस्टेंट दिस शेकिंग यू नीड टू परफॉर्म दिस टाइट्रेशन, सपोज आपके पास तीनों बिरट रीडिंग आपके पास आ गई हैं और आपने उनका मीन ले लिया, तो आपके पास मीन वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट आप क्या करोगे, नेक्स्ट यू यूज द नॉर्मेलिटी इक्वेशन। सो नॉर्मेलिटी इक्वेशन आपको यूज करनी है टू फाइंड आउट द नॉर्मेलिटी ऑफ द NaOH इन द स्टॉक सॉल्यूशन। ये जो स्टॉक सॉल्यूशन में NaOH की कितनी नॉर्मेलिटी है, हमने तो 0.1 बनानी है, बट क्योंकि हमने ज्यादा लिया है तो उसमें उसकी नॉर्मेलिटी क्या है वो हमें पता करनी है। ठीक है, तो यू यूज द नॉर्मेलिटी इक्वेशन N1B1 इज इक्वल टू N2B2। सो एक साइड में हमने ऑक्सैलिक एसिड के कंटेंट ले लिए और दूसरी साइड में हमने NaOH के ले लिए, जिसको हमने निकालना है। तो ऑक्सैलिक एसिड की क्या थी कंसंट्रेशन, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड दैट वी हैव प्रिपेयर्ड, 0.1 और n/10, 1/10 है ना, n/10 इनटू वॉल्यूम हमने कितने पिपेट किया, 10 ml। 10 ml। आप अपनी मर्जी से कर सकते हो, 5 भी कर सकते हो, 20 भी कर सकते हो। मैं सपोज कर रहा हूं कि मैंने 10 किया है ना, इक्वल टू N2 आपको कैलकुलेट करना। और B2 क्या है, बिरट रीडिंग, जो मीन बिरट रीडिंग है ना आपकी, वो है B2। तो यहां से आपके पास N2 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। तो यहां से आपको ये ध्यान रखना है कि यहां से आपके पास एक चेक हो जाएगा कि जो आपने NaOH का नॉर्मल सॉल्यूशन बनाया है वो ठीक बना है कि नहीं बना है। इफ दिस N2 इट कम्स आउट टू बी ग्रेटर देन 0.1 देन यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। अगर 0.1 से ज्यादा, सपोज 0.15 आता है ना, 0.1 से ज्यादा है ना, तो मतलब आपका
ठीक चल रहा है। अगर 0.1 से कम आता है ना, तो फिर अगेन you need to add some NaOH into your stock solution and again repeat this experiment. समझ आया आपको? यस सर। क्योंकि जो आपका सोल्यूशन है वो हायर कंसंट्रेशन का होना चाहिए जो रिक्वायर्ड है, तभी आप उसको डिल्यूशन मेथड से स्टैंडर्ड कर पाओगे। तो अगर पहले ही 0.1 से कम है तो फिर आप आगे कैसे जाओगे? तो यहां से 0.1 से हमेशा ज्यादा आना चाहिए। अब कई केसेस में क्या होता है, यहाँ पूरा एग्जैक्ट 0.1 आता है, तो उस केस में क्या होगा फिर? Suppose your N2 value comes exact 0.1, then सर वो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बन जाएगा। हाँ, अगर आपके पास आगे ही 0.1 आता है, so that means that NaOH that you have prepared is already 0.1, so no need to go further, no need to apply this concept of dilution then, कि जो आपने N2 बनाया वो तो ऑलरेडी 0.1 है, so आपने जो बनाया है वो ठीक है, तो उसके आगे आपने करना ही नहीं है। तो यहाँ पे आप चेक रखोगे कि जो आपका सॉल्यूशन है वो 0.1 से उसकी ज्यादा कंसंट्रेशन होनी चाहिए। अगर सपोज यहाँ पे 0.09 आई ना, तो आप क्या करो, आपने कुछ नहीं करना, 3-4 पैलेट्स लेनी है NaOH की और अपने स्टॉक सॉल्यूशन में ऐड कर देनी है और उसको फिर से डिसॉल्व कर देना है। अगेन परफॉर्म दिस टाइट्रेशन एक्सपेरिमेंट एंड कैलकुलेट N2 एंड सी वेदर इट नाउ कम्स ग्रेटर देन 0.1 और नॉट। ठीक है, एक पार्ट आपने कर लिया। नो, दूसरे पार्ट में आपने क्या करना है, you again use this normality equation now to calculate the volume, that what volume of NaOH is required to standardize your this solution। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो 0.15 नॉर्मेलिटी हमारे पास आई है उसका कितना वॉल्यूम हमें चाहिए एंड उसमें कितना पानी ऐड करना पड़ेगा, so that our resulting solution is this exactly 0.1 नॉर्मल। ठीक है, तो उसके लिए मैं NaOH जो प्रैक्टिकल में परफॉर्म कर रहा हूं, एक साइड वो लिखूंगा और एक साइड मुझे चाहिए क्या, एग्जैक्ट मुझे चाहिए क्या वो लिखूंगा। दोनों में NaOH के बारे में ही लिखूंगा। सो N1 जो मैंने बनाया है वो 0.15 बनाना है, जो ऊपर मैंने कैलकुलेशन किया है वो 0.15 आई। V1 मुझे कैलकुलेट करना है, एग्जैक्ट चाहिए क्या, 0.1 नॉर्मल चाहिए इनटू 50। तो सपोज वहां से B1 की जो वैल्यू है that comes out to be 166.67 ml, it comes out to be 166.67 ml। तो आप क्या करोगे, 166.67 ml अपना स्टॉक सॉल्यूशन लोगे और बाकी जो 250 में बचता है वो आप क्या लोगे, वाटर। उसमें क्या डालोगे, वाटर, एंड द रिजल्टिंग 250 ml solution will be your point normal standard solution of NaOH having volume 250 ml। ठीक है, तो 166.17 आप कैसे मेजर करोगे, आप मेजरिंग सिलेंडर भी यूज कर सकते हो, बट आपको ब्यूरेट यूज करनी चाहिए, बिकॉज ब्यूरेट में जो कैलिब्रेशन है वो बेटर होती है उसमें, जो बिकॉज इन 1 ml यू हैव 10 पॉइंट्स, सो वहां से आपको ज्यादा एग्जैक्टली कर सकते हो। मेजरिंग सिलेंडर में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बट यू कैन यूज दैट आल्सो, एंड you can use either measuring cylinder or you can use burette to measure this 166.7। अब मैंने यहाँ पे 83.33 क्यों लिखा है, क्योंकि 250 में से जब आप ये माइनस करते हो तो यही आता है, तो 83 आता है या 93 आता है, 83। ठीक, कितना आएगा सर 83। हाँ, तो यही जितना आएगा। भी 250 माइनस 166 होगा उतना आप उसमें पानी डाल दोगे, एंड द रिजल्टिंग जो आप फिर उसमें जो आपका दिस NaOH का मिक्सचर जो पानी के साथ आपके सॉल्यूशन बना हुआ है, दैट विल बी द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ NaOH। सो व्हाट यू विल डू, you just take that वॉल्यूमेट्रिक 250 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क जिसमें आपने इसको स्टैंडर्डाइज किया है सॉल्यूशन बनाने के बाद, तो आप उसको लेबल लगा दोगे और उसको रख दोगे, बिकॉज दिस सॉल्यूशन इज फर्दर यूज्ड फॉर स्टैंडर्डाइजिंग द सॉल्यूशन ऑफ HCl। तो आप उसको क्या करो, एक फिल्टर पेपर लो, उसके सेंटर में होल करो और उस फिल्टर पेपर लिख दो 0.1 नॉर्मल NaOH सॉल्यूशन, उसको उसके नेक में हैंग कर दो एंड कीप इट इन योर कबर्ड फॉर द फर्दर
यूज इन योर प्रैक्टिकल्स, बिकॉज जो आपके रेगुलर सीरीज के प्रैक्टिकल हैं उसमें भी NaOH काम आएगा, तो उसके लिए भी रखोगे, और HCl की स्टैंडर्डाइजेशन में भी जो है आपका NaOH काम आएगा, तो आप उसमें भी उसको रखोगे। ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कुछ समझ नहीं आया हो, सो यू कैन आस्क मी। हाँ जी, वहां पे n/10 क्यों लिखा है आपने? कहाँ पे? नॉर्मेलिटी निकाली है ऊपर। स्टार्टिंग में यहाँ पे सर ऑक्सैलिक एसिड की नॉर्मेलिटी जब निकाली है 10/10 n/10 क्यों लिखे? ये फॉर्मूला है ना, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ नॉर्मेलिटी? नॉर्मेलिटी इज वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय योर वॉल्यूम इन nml। तो बिकॉज आई एम प्रिपेयरिंग n/10 ना, तो n/10 नहीं लिखूंगा ना, जो आपको बनाना है ना वही लिखोगे आप यहाँ पे। Okay. अगर आपको 1 नॉर्मल बनाना है तो मैं सिर्फ 1 लिखूंगा, मतलब n मैंने ऐसे ही लिख दिया, एक्चुअली इट इज 1/10, इट इज 1/10। ओके सर। n मैंने इसका यूनिट लिखा है, n इज द यूनिट ऑफ नॉर्मेलिटी, तो मैंने n/10 इसलिए लिख दिया क्योंकि हमें n/10 बनाना है, इसलिए मैंने n/10 को लेफ्ट साइड पे लिख दिया। एक्चुअली इट इज द फॉर्मूला, इट इज द फॉर्मूला ऑफ नॉर्मेलिटी। यस सर। ठीक है, पता चल गया? यस सर। हाँ, और कोई? क्योंकि अब जब आप लैब में जब भी आओगे ना तो आपको ये करना है, इसके बिना आप आगे कोई काम नहीं कर सकते। दिस इज द बेसिक थिंग दैट यू नीड टू डू व्हेन यू डू द प्रैक्टिकल्स ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, है ना? क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में सारे प्रैक्टिकल में कंसंट्रेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी आप प्रैक्टिकल करोगे उसमें कंसंट्रेशन लिखी होगी, तो अगर आपको कंसंट्रेशन वो वाला बनाना आएगा ही नहीं तो आप आगे कैसे जाओगे, है ना? सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो, कोई चीज समझ नहीं आया हो प्रोसीजर तो आप फिर से पूछ सकते हो, है ना? ठीक है, समझ आ गया? सो आज इतना ही रखते हैं। सो नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीक विल सी हाउ टू स्टैंडर्डाइज दिस HCl एंड व्हाई वी नीड टू स्टैंडर्डाइज HCl। ठीक है? ओके सर। यस सर। ओके, एक्सक्यूज ठीक सर। है। हाँ बोलो, सर अटेंडेंस मिस हो गई थी। क्या नाम है? समृद्धि खजूरिया। आप कहाँ होते हो? मैं सबका नाम 2-2 3-3 बार बोलता हूँ। सर वो कनेक्ट नहीं हो विशाखा रहा था, शर्मा भी। कनेक्ट ही नहीं हो रहा। 41। सर रोल नंबर 14 भी। आपने बोल दिया ना कितनी बार, मैंने लिख दिया। समृद्धि 41 हाँ, आपकी एब्सेंट लगी थी, प्रेजेंट हो।